Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 12. I am Asif Munir. I am teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture. In previous lecture, we discussed about the where clause, and we discussed how where clause is used to restrict the rows. Then we talked about certain search conditions that were being used in where clause, and there were different search conditions. We talked about the pattern matching. We talked about the string match using pattern match. We talked about in operator and so on, different search conditions that could be used in the where clause. Then we talked about how to sort our results, query results, and how order by clause can be used to sort our results. And finally, we discussed the aggregate functions, and we discussed the major aggregate functions: count, minimum, maximum, average, and sum. Today we will start from where we left, and we will go into further details of the SQL select statements. As I discussed in my previous lecture, that select is the most commonly used basically statement or command that is frequently used, and it is used to retrieve or select the data from the database. Again, just to give you an overview that what database is being used in this basically scenario, we have a Dream Home case study, and you can have a look at these tables. You can see on your screens we have branch table, staff, property for rent, client, private owner, viewing. I discussed all this case study in detail, so I will not go into the details right now. These are the instance of the Dream Home database. We have branch table with 5 tuples rows, and we have staff table with 6 rows, and the data has been entered. Property for rent, we have client, and so on, private owner, viewing, and registration. And I discussed in detail that these tables are basically used in capturing the information that is basically necessary for running this Dream Home office or organization, you can say, and certain branches are there, and how basically they capture all the information regarding all the properties, clients, customers, staff, and so on, all the details. In our previous lecture, we discussed about aggregate functions, and we said that aggregate functions could be used, and basically aggregate functions, as I discussed in my previous lecture, that aggregate functions are used to in reports to get some kind of summation or total. Like in reports you see that what is the total salary of all the employees, maybe how many staff members are there in each branch, and what is the average salary of the staff members, who is getting the minimum salary, who is getting the maximum salary, and so on. You can basically include any kind of aggregate functions into your query results. And these aggregate functions are very important when we are creating certain reports that are used by the higher officials or the management of that particular organization. Aggregate functions के बाद अब अगली जो चीज़ that I would like to discuss
that is grouping the results. I discussed this grouping in relational algebra when we were learning about relational algebra, and we discussed grouping there. मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ग्रुपिंग जो है बेसिकली ग्रुप, जैसा कि आप नाम से जाहिर है कि ग्रुप किस बेस पे बनता है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब ग्रुप किस बेस पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेल वो कॉमन है, सारे मेल्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, फीमेल का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। अगर हम यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट ले लें तो मिसाल के तौर पे देयर आर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन सकता है। फर्दर उनके सब ग्रुप्स बनाना चाहें, मिसाल के तौर पे जी हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के हैं, तो हम उनकी बेस पे जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं। एंड फैकल्टी को अगर हम कंसिडर करें तो फैकल्टी को देखें तो हम फैकल्टी के ग्रुप्स बना सकते हैं, हम लेक्चरर्स का अलग ग्रुप बना सकते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स का बना सकते हैं, प्रोफेसर्स का बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जो ग्रुपिंग है ये भी रियल लाइफ में इसका बड़ा इस्तेमाल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जो ग्रुपिंग के बेस के ऊपर आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे वी आर डीलिंग विद अ यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड वी वांट टू सी जी के हाउ मेनी असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर देयर, what is the sum of the total salaries for assistant professors, lecturers and so on as professors। तो जिस तरह एग्रीगेट फंक्शन जो है वो एक सिंगल रो जो है वो रिटर्न करता था, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता था हमारे लिए, इसी तरह जो ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो वो पर ग्रुप जो है हमें उसका मतलब कोई भी हम एग्रीगेट फंक्शंस, उधर भी एग्रीगेट फंक्शंस ही यूज होंगे और हम उस ग्रुप के हवाले से एक जो है वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे काउंट कर लेंगे कि कितने उस ग्रुप में एम्प्लॉयज हैं, कितने उनकी सैलरी का सम क्या है, एंड सो ऑन, इस किस्म की चीज़ें, उनमें से सबसे कम सैलरी कौन ले रहा है, एंड सो ऑन। तो ग्रुपिंग का जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डेटाबेस में, और एसक्यूएल जो है इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू बेसिकली आप रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग को अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस थे दे वर बेसिकली दे आर जस्ट लाइक कि जी हमारी जिस तरह रिपोर्ट्स हों डिफरेंट, और उनके एंड पे जो टोटल हमने किए होते हैं, मसलन हमने तमाम सैलरीज है और सैलरी का आखिर में टोटल किया हुआ है, ठीक है, तो ये तो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हमें प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन ग्रुपिंग किस तरह हो कि मसलन हम कहें जी जो सुपरवाइज़र है उनकी सम सैलरी का अलग निकाल दो, जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी का सम निकाल दो, जो आपके कोई और जॉब है, पोजीशन है, असिस्टेंट हैं, उनकी सैलरी का सम निकाल दो, एंड सो ऑन। तो मतलब हर ग्रुप के हवाले से फिर एक हमें टोटल चाहिए होगा, एंड दैट वुड बी कॉल्ड अ सब टोटल। तो मतलब रिपोर्ट्स में मतलब आपको बाज़ औक़ात सब टोटल्स भी चाहिए होते हैं। अब मुख्तलिफ टर्म्स हैं, मैं जस्ट इन जो कुछ स्टेटमेंट्स इस स्लाइड पे आपको नज़र आ रही होंगी, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। कोई भी क्यूरी जिसके अंदर ग्रुप बाय क्लॉज, अब ग्रुपिंग जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है या उसको यूज़ किया जाता है एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर। तो ग्रुप बाय का क्लॉज जो है, अब जब आपको याद है कि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को इन जनरल डिस्कस किया था, तो ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो आता था तकरीबन लास्ट में, और ग्रुप बाय के साथ फिर हम देखेंगे कि कैसे हैविंग का भी इस्तेमाल होता है। और अब जो ग्रुप बाय जब भी किसी क्यूरी में आ जाएगा तो दैट क्यूरी विल बी कॉल्ड अ ग्रुप क्यूरी। और डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि हर जो है जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे तो हम किसी ना किसी एट्रीब्यूट के ऊपर ग्रुपिंग करेंगे। और कीप इन माइंड कि ग्रुपिंग कोई भी ऐसी हो सकती है जिसमें मतलब उस एट्रीब्यूट के लिए मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो उसके ऊपर ग्रुपिंग हो सकती है। मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फ़र्ज़ करें हम ब्रांच के ऊपर ग्रुपिंग करते हैं स्टाफ के टेबल में, स्टाफ में जैसे एक ही ब्रांच के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो हम मतलब उस ब्रांच B003 की मल्टीपल जो है वो इंस्टेंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो हम उसके ऊपर ग्रुपिंग कर सकते हैं। हम मे बी ब्रांच नंबर के अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर
ऊपर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे पोजीशन के ऊपर हम कर सकते हैं जी कि मसलन जो मैनेजर्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, सुपरवाइज़र का एक ग्रुप बना दिया जाए, असिस्टेंट का एक ग्रुप बना दिया जाए। इसके अलावा हम जेंडर के ऊपर, सेक्स के ऊपर, मेल या फीमेल, उसके ऊपर ग्रुपिंग कर सकते हैं, या कोई और जो भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही है मल्टीपल टाइम्स, हम उसकी बेस के ऊपर जो है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब लॉजिकली जिसकी कोई भी सेंस बनती होगी तो हम उसके ऊपर ग्रुपिंग कर सकते हैं। और जो ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रुपिंग में अब जब हमने मल्टीपल रोज को एक ग्रुप के तौर पे रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली हमें उसके अगेंस्ट फिर एक ही कोई समेशन या कोई एक रिजल्ट देना है। तो मतलब अब ये बात बड़ी ऑब्वियस ही है कि हमें वहाँ पे कोई एग्रीगेट फंक्शन अगेन पर ग्रुप यूज करना है। हर एक ग्रुप के लिए कोई एग्रीगेट फंक्शन होगा, जैसे काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, सम हो गया या एवरेज हो गया। तो मतलब लॉजिकली इस चीज़ की भी सेंस बनती है कि मसलन एक जब हम 10 लोगों का एक ग्रुप था, मसलन सारे मैनेजर्स को हम एक जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मे बी देयर वर 10 मैनेजर्स, तो देन वी नीड टू बेसिकली प्रोवाइड जस्ट अ सिंगल कोई भी वैल्यू उस ग्रुप के अगेंस्ट, और वो सिंगल वैल्यू आपको पता है कि 10 लोगों की जब आपने जब कैलकुलेट करनी है तो वो डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। The columns named in the group by clause are called grouping columns। तो हम देखेंगे कि जो group by clause में जो जब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे क्यूरी का, तो उसके अंदर जो कॉलम नेम्स group by clause में यूज होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रुपिंग कॉलम्स। और उनको ग्रुपिंग कॉलम इसीलिए कहते हैं कि उन कॉलम्स की बेस के ऊपर ग्रुपिंग की जाती है जो है क्यूरी के अंदर। तो हम एग्जांपल देखेंगे तो आई होप थिंग्स विल बी प्रिटी क्लियर। अब ISO स्टैंडर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो ISO स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कि जी सिलेक्ट और जो ग्रुप बाय क्लास हैं दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। तो मतलब उनका काफ़ी आपस में गहरा ताल्लुक है। ये गहरा ताल्लुक इस हवाले से है कि ईच आइटम इन द सिलेक्ट लिस्ट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड पर ग्रुप। तो जो ग्रुप बाय जो है उसके अंदर मतलब जब हम सिलेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी जो ऐसा कॉलम आएगा जो सिंगल वैल्यूड पर ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, मैं ये एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ये बात होपफुली ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। और सिलेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो सिलेक्ट के साथ, जैसे आपको पता है कि सिलेक्ट किसके लिए यूज़ होता था, सिलेक्ट कि जी फाइनल हमारे जो रिजल्ट में क्या चीज़ जो होगी वो सिलेक्ट के अंदर हम लिखते हैं। तो सिलेक्ट में कॉलम नेम्स आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कॉलम नेम्स ऐसे आ सकते हैं जिनके, अब कीप इन माइंड अभी मैं जब क्यूरी आपको कराऊंगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि सिलेक्ट के अंदर जब भी कॉलम नेम यूज होगा तो वो जो कॉलम नेम है दैट मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, दूसरी चीज एग्रीगेट फंक्शंस आ सकते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है, एग्रीगेट फंक्शंस ऑफ मेजॉरिटी मतलब वही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर ग्रुप के लिए कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं। हम किसी ग्रुप की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यूज को असाइन करना चाहें तो वहां पे सिलेक्ट में वो हम दे सकते हैं। एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव मीन्स के जी कॉलम नेम्स प्लस एग्रीगेट फंक्शन प्लस कांस्टेंट, किस इन सारों को मिला के हम कोई भी चीज़ जो है वो दे सकते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सिलेक्ट के अंदर आ सकती हैं जब हम जो है ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मतलब ये कुछ थ्योरेटिकल अब ये उसकी जो है फाउंडेशन है ग्रुप बाय के हवाले से, तो हम इसको फिर देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा अब पिछली जो हमने डिस्कस की कि सिलेक्ट में क्या क्या आ सकता है, दूसरी चीज़ ये है कि ऑल कॉलम नेम्स इन द सिलेक्ट लिस्ट मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज, कि जितने भी कॉलम आपने सिलेक्ट के अंदर यूज किए हैं और ग्रुप बाय यूज हुआ है तो ग्रुप बाय के बाद वो कॉलम नेम्स आने चाहिए उन कॉलम्स या एट्रीब्यूट के नाम के अलावा जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो मसलन आपने कोई भी सिंगल बगैर कोई एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम नेम यूज किया है, आपने अगर एसक्यूएल कमांड के अंदर, सिलेक्ट कमांड के अंदर, और आपने नीचे ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज किया है, तो जो कॉलम भी बगैर एग्रीगेट फंक्शन के इस्तेमाल हुए हैं उनको मस्ट अपीयर होना चाहिए आपके ग्रुप बाय क्लॉज के बाद।
दी कंट्रेरी इज नॉट ट्रू, रिवर्स ट्रू नहीं है कि जो ग्रुप बाय में आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट के अंदर आए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि हम वो कॉलम रिजल्ट में नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन हम ग्रुपिंग उसकी बेस के ऊपर कर रहे हैं, तो हम ग्रुप बाय में तो वो शामिल कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको उस रिजल्ट में भी दिखाना चाह रहे हो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर कैन बी अ नेम इन ग्रुप बाय क्लॉज, एक एट्रीब्यूट का नाम हो सकता है, बट दैट इज नॉट बेसिकली अवेलेबल इन सिलेक्ट लिस्ट। ठीक है जी, तो ये आपने जहन में रखनी है कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मतलब ये जो कंट्रेरी वाला है इसका तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप सिलेक्ट के अंदर एग्रीगेट फंक्शन के बगैर कोई एक एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं तो, और ग्रुप बाय अगर है तो ग्रुप बाय के अंदर वो वाला एट्रीब्यूट लाजमी आएगा, और वो वही एट्रीब्यूट होगा जिसकी बेस के ऊपर आप ग्रुपिंग कर रहे होंगे। तो ये आपके जहन में बहुत क्लियर होनी चाहिए चीज़। अच्छा, when the where clause is used with group by, the where clause is applied first। अब ये जहन में रख लें कि अगर where भी इन केस यूज हो जाता है, मतलब आपने select स्टेटमेंट लिखी, आप where clause भी लगा रहे हैं और उसके ऊपर group by भी लगा हुआ है, तो where की हमेशा जो प्रायोरिटी है दैट इज बिफोर ग्रुप बाय। पहले where clause के थ्रू वो रोज रिस्ट्रिक्ट होंगी, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसके ऊपर फिर ग्रुप्स जो है वो अप्लाई होंगे, और जो है वो वाली आपकी जो है फिर उन रोज़ जो रिमेनिंग रोज़ रह गई हैं उनकी जो है वो उसके ऊपर ग्रुप्स आपके बनेंगे। अब कीप इन माइंड कि जी अगर फ़र्ज़ करें दो नल हैं, तो जो ISO स्टैंडर्ड है दैट कंसिडर्स टू नल्स टू बी इक्वल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज के, मतलब अगर दो नल वैल्यूज़ हैं तो उनको वो एक ही ग्रुप के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ISO स्टैंडर्ड जो है SQL का। अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आई होप कि जी आपके लिए ये सारी बातें समझना आसान होगा, और मैं आपको एग्जाम्पल से भी ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब एक चीज़ जहन में रख लें कि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कोई ग्रुपिंग वाली क्यूरी हमने लिखनी है तो उसमें क्या होगा कि हम मल्टीपल रोज को एक उसका सब टोटल कैलकुलेट करेंगे, मतलब बेस्ड अपॉन सम कॉमन उनकी कोई वैल्यू के ऊपर। मसलन जैसे मैंने बताया कि आप पोजीशन में मैनेजर के लिए अलग आप कोई टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, सुपरवाइजर के लिए अलग कर लेंगे, असिस्टेंट के लिए अलग कर लेंगे एंड सो ऑन। तो मतलब अब जब हम मल्टीपल रोज को एक सिंगल रो में रिप्रेजेंट करना है, कोई हमने उनके सब टोटल्स हैं, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू अगेंस्ट दैट ग्रुप, हर ईच ग्रुप। तो ये हमने जहन में रखना है। तो अब सपोज इफ यू आर आस्क्ड कि जी फाइंड नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच ब्रांच एंड देयर टोटल सैलरी, इट्स अ वेरी वैलिड क्यूरी कि जी मसलन आपकी मैनेजमेंट आपसे कहती है कि हमें हर जो है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि उस ब्रांच में कितने लोग काम करते हैं प्लस उनकी सैलरीज का सम क्या है, ताकि आप देख सकें कि हर ब्रांच पे हमारा कितना एक्सपेंस आ रहा है और कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब इस किस्म की जब भी क्यूरी आएगी, और ये ज़रा जहन में रख लें कि मसलन वर्डिंग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वर्डिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू नीड टू बेसिकली बी वेरी केयरफुल एंड यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन ईच वर्ड बेसिकली, और हर एक वर्ड को आप बड़े गौर से देखें और फिर देखें कि उसका क्या मीनिंग है। तो इसमें अगर देखें तो फाइंड नंबर ऑफ स्टाफ, तो नंबर ऑफ स्टाफ से मुराद हमें तादाद चाहिए। तादाद हमें पता है हम किस एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू निकालते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू निकालते हैं, ये बात तो हमें क्लियर होगी। लेकिन जो अगला जो आपका पोर्शन है इस सेंटेंस का है वो है इन ईच ब्रांच। अब दैट्स वेरी क्रिटिकल। ईच ब्रांच से मुराद ये है कि हर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काउंट करना है, लोगों को, स्टाफ को काउंट करना है, एंड देयर टोटल सैलरीज। तो बड़ा क्लियर हो गया जी कि हर ब्रांच के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ स्टाफ और टोटल सैलरी काउंट करनी है। तो अब हमने लिखा जी सिलेक्ट। अच्छा, अब हमने किस तरह रिजल्ट दिखाना है, हमने ब्रांच भी दिखानी है, हर ब्रांच, और फिर उसके अगेंस्ट कितना टोटल लोगों के तादाद, स्टाफ कितना है उसमें, और उनकी सैलरी का सम कितना है। तो इसलिए हमने पहले जो लिखा वो ब्रांच नंबर लिखा, और ब्रांच नंबर तो हमने कोई उसका टोटल उसका तो नहीं करना ना, ब्रांच नंबर तो हमने दिखानी है कि जी ये B002 ब्रांच है, इसका इतने लोग हैं और इसके इतने सैलरी का सम है, तो इट मीन ब्रांच नंबर तो एज इट इज आएगा। अच्छा, दूसरी चीज आएगी काउंट, जो कि उस लोगों को काउंट करेगा। ठीक है,
अच्छा, कौन से लोगों को काउंट करेगा जी? हम स्टाफ नंबर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक भी यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम स्टाफ नंबर को काउंट कर लेते हैं। तो स्टाफ नंबर के एट्रीब्यूट को हमने काउंट कर लिया और इसको हमने रीनेम कर दिया। इसका जो रिजल्टेंट जो हमारा टेबल है उसके अंदर हमने इसको, इस एट्रीब्यूट का नाम जो है वो हमने माई काउंट सेट कर दिया। तो एज माई काउंट इसको हमने कह दिया। फिर कॉमा, अगली जो चीज़ थी वो हमने सैलरी दिखानी थी, टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी हमें पता है, हम सम करेंगे सैलरीज का, तो सम ऑफ सैलरी एज माई सम। और टेबल कौन सा है? स्टाफ का है, फ्रॉम स्टाफ। अब देखें, मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपसे डिस्कस किया था कि हमने ग्रुप बाय यूज करना है। ग्रुप बाय इसलिए कि हमें कहा गया हर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्रुप बाय का क्लॉज हमेशा फ्रॉम के बाद आता है, या वेयर हो तो वेयर के बाद भी आता है। तो ग्रुप बाय, वेयर तो है नहीं यहाँ पे, तो हमने ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिलेक्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो बगैर एग्रीगेट फंक्शन के आ रहे हैं, वो आपके जो है ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर मैंडेटरी हैं, वो वहां पे आए। तो हमने देखें कि ब्रांच नंबर के ऊपर ग्रुपिंग अप्लाई कर दी, और ऊपर देखें सिलेक्ट में ब्रांच नंबर आपका आ रहा था, तो हमने ग्रुप बाय के बाद ब्रांच नंबर यहां पे लिख दिया, और उसके बाद ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। तो अब जो आपकी रो सिलेक्ट होंगी, पहली बात कि वो जितनी ब्रांच मतलब डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनकी बेस के ऊपर आपका असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देगा। B00 अगर 1 है पहले, तो पहले वो आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप टेबल देखें तो हमारे पास सिर्फ 3, 5 और आई थिंक 7 का ही रिजल्ट है, ठीक है। तो 3 रोज हमारी जो है वो 3 की है। तो माई काउंट, उसने स्टाफ काउंट किया, तो 3 लोग हमारे स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो B003 में काम करते थे, और उनकी सैलरी का सम 54,000। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, प्लीज अपने सामने वो जो इंस्टेंस है स्टाफ रिलेशन की वो सामने रख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए, और उधर से काउंट कर लें, इसको वेरीफाई कर लें कि आपकी सैलरी का सम, और 3 ही स्टाफ मेंबर्स उसके अंदर हैं। B005 के अंदर 2 लोग हैं, इसलिए माई काउंट में उसकी 2 वैल्यू आई, और जो उनकी सैलरी का सम आ रहा है वो 39,000 आ रहा है। अगेन यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम द इंस्टेंस ऑफ द स्टाफ रिलेशन। B007 के अंदर एक रिलेशन है, और 9,000 उसकी डेफिनेटली एक ही बंदा है, तो उसकी सैलरी जो होगी वही सम होगा। तो ये रिजल्ट आया इस टेबल का। तो अब हमने देख लिया कि ग्रुप बाय किस तरह हम जो है ब्रांच के ऊपर ग्रुपिंग की, और फिर स्पेसिफिक ब्रांच के हवाले से हमने नंबर ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच प्लस सम ऑफ द सैलरीज ऑफ दोज स्टाफ मेंबर्स जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नाउ यू कैन सी दैट हाउ यूजफुल दीज ग्रुप बाय functions or group by clause is basically. अच्छा, अब एक चीज ज़हन में रखनी है कि मैंने आपको बताया कि जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आपके इस्तेमाल हुए हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टाफ नंबर काउंट में हुआ था और सैलरी सम के अंदर हुआ था, तो उनको हमें ग्रुप बाय क्लास के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं उनको आपने ग्रुप बाय में लिखना, उनका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बगैर एग्रीगेट फंक्शंस के होंगे उनको लिखना मैंडेटरी है। ठीक है जी। तो ब्रांच नंबर जो है वो आपका, जैसे आप देख सकते हैं कि वो नहीं था एग्रीगेट फंक्शन के अंदर, इसलिए उसको हमने ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर लिखा और वो मैंडेटरी था, जबकि स्टाफ नंबर और जो सैलरी है वो हमारा जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर थे, तो उसको हमने उसके अंदर नहीं लिखा। अब कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो आपकी जो ग्रुप बाय क्लॉज किस तरह काम करता है, पहली बात है कि एसक्यूएल क्या करता है कि पहले वो डिवाइड कर देता है, मतलब ब्रांच नंबर के हवाले से, कि मसलन जी पहले जो जिस तरह B003 की रोज हैं उनको इकट्ठा कर लेगा, B005 की अलग कर लेगा, B00 मतलब उनको लॉजिकली एक सीक्वेंस में लिख लेगा। फिर उसके बाद हर ग्रुप के लिए, मसलन हर ग्रुप के लिए जो 3 वाला ग्रुप है उसको वो उसके ऊपर कंप्यूट करेगा कि कितने काउंट करेगा, कितने लोग हैं उसके अंदर, उनकी सैलरीज की वैल्यूज को आपस में क्या कर देगा, सम कर देगा। एंड फाइनली क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा उसको ब्रांच नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय का क्लॉज भी यूज किया था, तो ऑर्डर बाय और हमने कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं दिया, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो असेंडिंग होता है। तो वो आपका जो रिजल्ट है ब्रांच वाइज, ब्रांच नंबर की बेस के ऊपर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कर देगा। इसको मैं डायग्राम दिखाऊं तो आपको ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं
कि पहले उसने मतलब जस्ट ये कंसेप्चुअल उसकी हम दिखाना चाह रहे हैं कि उसने कैसे बेसिकली कैलकुलेट किया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एज इट इज़ आप इसको समझें कि ऐसे ही होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पहले उसने B003 की तीनों आपने जो है वो रख ली, और देखें इसमें 3 हमारे पास फील्ड्स हैं, ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर और सैलरी। ठीक है, तो हमने अभी एग्रीगेट फंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन अभी हमने सिर्फ एज इट इज़ वही 3 एट्रीब्यूट्स रिजल्ट में दिखा दिए। देखें B003 की 3 रोज़ हैं, सैलरीज 12,000, 18,000, 24,000। B005 2 हमारे पास इस ब्रांच की इंस्टेंसेस हैं, SL21, SL41, और 30,000 और 9,000 सैलरीज हैं इन 2 लोगों की। इसके बाद B007 वाली 1 रो है। अब इन पहली 3 रोज़ का जो B003 से बिलोंग करती हैं उनका हमने एक ग्रुप बना लिया, B005 वाला 2 रोज़ हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, और B007 वाला एक ही रो है इसका एक अलग ग्रुप बना दिया, और इन तीनों को काउंट कर लिया। उसमें 3 स्टाफ मेंबर्स थे, इसमें 2 थे, इसमें 1 था, और इनकी सैलरीज का सम भी उसने कर लिया। तो दिस इज हाउ बेसिकली योर अल्टीमेट रिजल्ट इज शोन। अब एक चीज मैंने जैसे आपको पहले भी शायद डिस्कस की थी कि एक ज़हन में रखना है कि एक क्यूरी जो एक तरीके से लिखी जा सकती है, मे बी उस क्यूरी को हम डिफरेंट वे में भी लिख सकें। और बहुत सारे मतलब एसक्यूएल की ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि वीकनेस तो नहीं, लेकिन मतलब बाज़ वक़्त बहुत सारी क्यूरीज जो है वो एक मेथड से भी लिखी जा सकती हैं, और एक क्लॉज यूज़ करते हुए या कोई मेथड यूज़ करते हुए, तो उसका अल्टरनेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप मस्ट यही वाला जो है वो यूज़ करें। तो मतलब इसी क्यूरी को एक और अल्टरनेटिव वे में लिखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। और जो है कि हम जो है सिलेक्ट की एक और स्टेटमेंट हम सिलेक्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं कि सिलेक्ट ब्रांच नंबर कॉमा, फिर हमने पैरेंथेसिस के अंदर सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट फ्रॉम स्टाफ वेयर एस डॉट ब्रांच नंबर इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच नंबर। तो हमने देखें हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टाफ, और अब ये क्यूरी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसको ज़रा गौर से आपको देखना होगा कि हम जो है सिलेक्ट के अंदर एक और सब सिलेक्ट मतलब लिख रहे हैं। तो हमने जो है अब मेजर जो आपकी बाहर वाला सिलेक्ट है, जो मेजर आपका सिलेक्ट है, उसमें आप देखें तो आपका जो फ्रॉम है उसके अंदर ब्रांच का टेबल आ रहा है। तो मतलब जो आप एक्चुअल डाटा ले रहे हैं वो ब्रांच के टेबल में से ले रहे हैं, लेकिन जो अंदर उसके वैल्यूज़ आ रही हैं वो स्टाफ के अंदर से आ रही हैं। जैसे आपकी पहली सिलेक्ट स्टेटमेंट है जो अंदर है पैरेंथेसिस के अंदर, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टाफ नंबर एज माई काउंट फ्रॉम स्टाफ एस वेयर एस डॉट ब्रांच नंबर। एस स्टाफ का एलियस है कि हमने स्टाफ टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एस नाम यूज़ कर लिया, और ये एलियस इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप इजीली बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आपने दोबारा यूज़ करना है तो पूरा आपको टेबल का नाम दोबारा लिखना ना पड़े। इक्वल्स टू बी डॉट ब्रांच नंबर, तो बी आप देखें कि ये नीचे जो मेन क्यूरी का ब्रांच का जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बी यूज़ किया गया है। तो मतलब सिर्फ वही वाली रोज हो जहाँ पे उन दोनों की ब्रांच इक्वल है वो वाली लेनी है, और फिर उनका काउंट कर लो, तो डेफिनेटली ये भी वही रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह फिर कॉमा लगा के सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी एज माई सम फ्रॉम स्टाफ एस, हम स्टाफ के अंदर से ही सम सैलरी का कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन किन लोगों की सैलरी का सम, जिनकी खास कंडीशन ये है कि जिनका एस डॉट ब्रांच नंबर, जिनका स्टाफ के अंदर ब्रांच नंबर की वैल्यू और ब्रांच के अंदर ब्रांच नंबर की वैल्यू एक जैसी है। मतलब कि अगर उधर B003 है तो इधर B003 वाले जितने स्टाफ हैं, ठीक है, अब वो जो है, और फाइनली हमने ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। अब इस क्यूरी और जो पिछली हमारी क्यूरी है इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। रिजल्ट जो है, मैंने नीचे आपसे क्वेश्चन भी किया कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्यूरी, तो द रिजल्ट वुड बी बिट डिफरेंट। वो कैसे कि पहली बात ज़हन में रखें कि जो मेजर हमारा फ्रॉम है वो ब्रांच के टेबल में से है। तो हम ज़रा अगर मैं आपको ब्रांच का टेबल दिखा दूं तो ब्रांच के टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी B002 भी मौजूद है, B003 भी है, B004 भी है, B005 भी है। तो पहली बात है कि हर ब्रांच ये वाली आएगी इधर, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, ये सारी ब्रांचेज हैं। अब जो आपका काउंट है, जो अब ब्रांच नंबर, इट मींस कि B002 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी, 7 भी आएगी, ठीक है। लेकिन अब जो अगली हमारी दूसरी फील्ड है वो ये आएगी कि सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट फ्रॉम स्टाफ
वेयर एस डॉट ब्रांच नंबर, सपोज हमने पहली ब्रांच B002 की बात कर रहे हैं, तो B002 की हम जरा स्टाफ टेबल को भी देख लेते हैं कि स्टाफ के अंदर हमारी B002 वाली कोई है स्टाफ मेंबर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई स्टाफ मेंबर ऐसा नहीं है जिसका ब्रांच B002 हो, तो इट मींस कोई भी रो इसकी नहीं आएगी, तो कोई भी मैच नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कंडीशन है कि जी वेयर एस डॉट ब्रांच नंबर, जो स्टाफ के अंदर ब्रांच नंबर है वो इक्वल्स टू है बी डॉट ब्रांच नंबर, तो कोई भी B002 के लिए तो कोई भी नहीं आए, तो इट मींस काउंट क्या आएगा, 0 आएगा डेफिनेटली। और जो सम क्या आएगा, सम अब चूंकि उसका वैल्यू ही नहीं है तो उसके क्या मतलब हमने सम क्या निकालना, तो सम हमेशा वहां पे एक मतलब वन नाउन वैल्यू होगी, नल आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह B003 ब्रांच के अंदर, अब अगली जो ब्रांच थी वो B003 है, तो B003 के लिए आप देखें तो स्टाफ के अंदर बहुत सारी रोज हैं, आपने देखी थी पिछले जो रिजल्ट में वही वाली रोज आएंगी, 3 रोज हैं जो B003 ब्रांच से बिलोंग करती हैं, और फिर इसी तरह उनका सैलरीज का सम जो है वो कितना बनता है, वो आपका 39,000 बनता है, आई थिंक 54,000। ठीक है जी, 54,000, तो वो आपका इधर आ जाएगा। इसी तरह B004 के लिए जब चेक करेगा तो B004 है, लेकिन स्टाफ के अंदर कोई भी स्टाफ जो है वो B004 का नहीं है, तो इसलिए अगेन उसका काउंट जो है वो 0 हो जाएगा और सम ऑफ सैलरी जो है वो नल हो जाएगी। B005 के हमारे पास 2 स्टाफ मेंबर्स हैं और वो हमारे जो हैं वो उनकी सैलरी का सम जो है वो काउंट 2 हो जाएगा, सैलरी का सम 39,000 हो जाएगा। इसी तरह B007 जो है उसका एक ही रो है, उसका काउंट 1 होगा और सम ऑफ सैलरी अगेन वही जितनी उसकी सैलरी है 9,000 आ जाएगा। तो मतलब इसका अब ये ऑलमोस्ट वही वाली क्यूरी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन हमने उसी क्यूरी को एक अल्टरनेटिव वे में लिख के देख लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जिस तरह वेयर क्लॉज इस्तेमाल होता था कि हम इंडिविजुअल रोज को रिस्ट्रिक्ट करते थे कि जी हम अपनी मर्जी की रोज को लेते थे और कुछ को मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे। हम कहते थे जी कि मसलन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टाफ वेयर पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर, तो व्हाट डज इट मीन कि हम तमाम जो है स्टाफ मेंबर्स का डाटा देखना चाह रहे थे जिनकी पोजीशन क्या है, मैनेजर है, और डाटा मतलब एट्रीब्यूट्स हमने ऑल उसमें सेलेक्ट किया, तो इसलिए उसके तमाम एट्रीब्यूट्स हम देखना चाह रहे थे। तो मतलब उसमें सिर्फ वही रोज आती थी जिनकी पोजीशन की वैल्यू मैनेजर है। अब जिस तरह वेयर क्लॉज जो है वो रोज को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो अब हमने जो पिछले मतलब स्लाइड के ऊपर सीखा वो ग्रुपिंग थी, तो हमने ग्रुप्स बना दिए डाटा के, मतलब ग्रुप वाइज रोज आ गई हमारे पास। तो बाज़ वक़्त ये भी तो हो सकता है कि हम ग्रुप्स के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा दें। मसलन फ़र्ज़ करें मैं मतलब आपसे आपका जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो ये पूछते हैं कि आप जिस तरह हमने पहले ग्रुप वाइज निकाला था कि हर ब्रांच के अगेंस्ट जो है आप देखें कि कितने स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं और कितने जो है उनका सैलरी का सम कितना है। तो मसलन वी माइट बी इंटरेस्टेड कि जी हमें बताओ जी कि ऐसी ब्रांचेस सिर्फ जिनके एटलीस्ट जो है वो 2 एम्प्लॉइज हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो अब आप जो है ना ग्रुप्स के अंदर वो सिर्फ रोज देखेंगे जो सर्टेन कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी। तो हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल होता है ग्रुप बाय के साथ। तो हैविंग क्लॉज इज डिजाइन्ड फॉर यूज विद ग्रुप बाय टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स दैट अपीयर इन द रिजल्ट टेबल। तो मतलब जिस तरह वेयर रोज को फिल्टर करता है, इसी तरह जो आपका हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा और आप अपनी मर्जी के ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। सिमिलर टू वेयर, बट वेयर फिल्टर्स इंडिविजुअल रोज वेयर एज हैविंग फिल्टर ग्रुप्स। तो मतलब इसमें थोड़ा सा फर्क है, काम तकरीबन एक ही नोयत का है, लेकिन वो रोज के ऊपर परफॉर्म करता है, ये ग्रुप्स के ऊपर परफॉर्म करता है। कॉलम नेम्स इन हैविंग क्लॉज must also appear in the group by list or be contained within an aggregate function। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो हैविंग के अंदर आ रहे हैं वो मस्ट अपीयर होने चाहिए, वो आपके ग्रुप बाय के अंदर या किसी एग्रीगेट फंक्शन के अंदर वो ज़रूर हों। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आप ऐसे कॉलम्स जो उधर नहीं है ऊपर, आप ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें यूज़ कर सकें इन प्रैक्टिस। लेकिन मतलब मोस्टली जो होता है कि कोई एग्रीगेट फंक्शन ही हैविंग क्लॉज के अंदर बेसिकली यूज़ होता है। द सर्च कंडीशन इन द हैविंग क्लॉज ऑलवेज इंक्लूड एटलीस्ट वन एग्रीगेट फंक्शन। तो हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मतलब हमेशा वहाँ पे कोई एग्रीगेट फंक्शन ही इस्तेमाल होगा। रिमेंबर दैट एग्रीगेट फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड विद द वेयर क्लॉज। तो आप
आपने ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपके जो वेयर क्लॉज है उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो एक ग्रुप के लिए जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो जो वेयर क्लॉज है वो तो यूज होता है इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करने के लिए, तो इसलिए हम वेयर क्लॉज के अंदर एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं करते, लेकिन एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन हैविंग क्लॉज, तो ये आपने ज़हन में रखना है। Okay, suppose if you are asked कि जी for each branch with more than one member of staff, find the number of staff in each branch and sum of their salaries, तो थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, क्यूरी वही पहले वाली है, कोई खास फर्क नहीं है। तो आपने सिर्फ क्या कहा है जी कि वही ग्रुपिंग करो हर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनका काउंट भी निकालो, उनकी सम ऑफ सैलरीज भी निकालो, लेकिन सिर्फ वो दिखाओ ग्रुप्स जिनमें एक से ज्यादा स्टाफ मेंबर है। तो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस, कोई इसमें कोई एज सच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट वही क्यूरी है। सिलेक्ट ब्रांच नंबर, क्योंकि ब्रांच वाइज हमने ग्रुपिंग करनी है, कॉमा काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट, कॉमा सम ऑफ सैलरी एज माई सम। फ्रॉम स्टाफ, फ्रॉम के बाद आपने ग्रुप बाय लगाया, ठीक है, और ग्रुप बाय मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि ब्रांच नंबर चूंकि एग्रीगेट फंक्शन में नहीं आया, तो अब मस्ट है कि ये हम जो है सिलेक्ट में चूंकि आया है और एग्रीगेट फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वी मस्ट इंक्लूड इट इन ग्रुप बाय क्लॉज, तो इसलिए हमने ग्रुप बाय क्लॉज में इसको शामिल कर लिया और हमें क्लियर है जी कि हम इसके ऊपर ग्रुपिंग कर रहे हैं। अब अगला जो चीज़ है वो है कि इस ग्रुप के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि इसकी कौन सी रोज दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी। तो हमने कहा जी हैविंग काउंट ऑफ स्टाफ नंबर ग्रेटर देन 1, तो मतलब आपने यहाँ पे ये कह दिया कि सिर्फ वो वाले ग्रुप्स दिखाने हैं जिनका काउंट ऑफ स्टाफ नंबर की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1, मींस 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं। तो ऑर्डर बाय फिर अगेन आपने ब्रांच नंबर कर दिया और आपको पता है कि ऑर्डर बाय जो है दैट इज द लास्ट वन दैट इज प्रोसेस्ड इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑर्डर बाय हमेशा सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें डेफिनेटली आपने रिजल्ट जो है वो कोई खास फर्क, थोड़ा सा फर्क होगा कि एक रो नहीं आएगी जो लास्ट वाली थी B007 ब्रांच वाली, क्योंकि उसके अंदर एक स्टाफ मेंबर था, तो बाकी दो जो B003 वाली हैं और B005 वाली हैं ये दोनों रोज आपकी आ जाएंगी। तो आई होप इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब क्यूरीज। तो जैसा कि क्यूरी होती है जो एक हमारी एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है, इसको हम एक क्यूरी कहते हैं। तो एक क्यूरी के अंदर जब एक और क्यूरी हम लिख दें, जिस तरह हमने वो एक अल्टरनेटिव वे यूज किया था, तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हम सब क्यूरी कहते हैं। तो एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स कैन हैव सेलेक्ट स्टेटमेंट्स एम्बेडेड विद इन देम, तो एक ही सेलेक्ट के अंदर और एक और सेलेक्ट एम्बेड कर दें तो दैट इज कॉल्ड अ sub query. A sub select can be used in where and having clause of an outer select where it is called a sub query. लेकिन sub query की खास बात यह है कि जब हम इसको where clause या having clause ऑफ एन आउटर सेलेक्ट में यूज करेंगे, मींस के एक आपका मेन सेलेक्ट स्टेटमेंट थी मेजर, वो उसको आउटर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं, और फिर वेयर के अंदर एक और हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर ली या हैविंग के अंदर एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर ली, तो देन दिस विल बी कॉल्ड अ सब क्यूरी और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड नेस्टेड क्यूरी। तो सब सेलेक्ट्स मे आल्सो अपीयर इन इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स। हम आगे जो है इन स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये शायद उधर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसके ऊपर बात नहीं करते। अब जो सब क्यूरी हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि एक सब क्यूरी जो है वो मल्टीपल किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक स्केलर सब क्यूरी जो होती है, इट रिटर्न्स अ सिंगल कॉलम एंड अ सिंगल रो। तो व्हाट डज इट मीन, इट्स अ सिंगल वैल्यू। तो जिस तरह हमने एग्रीगेट फंक्शन देखा था, जो एक एग्रीगेट फंक्शन हो तो वो एक कॉलम और एक ही उसके अगेंस्ट रो उसकी एक ही वैल्यू आएगी, तो वो एक हमारी स्केलर जो है वो सब क्यूरी की एग्जांपल हो सकती है। एक रो सब क्यूरी हो सकती है, रो आपको पता है कि जिसमें अगेन मल्टीपल कॉलम्स हो लेकिन एक सिंगल रो हो, तो ये रो सब क्यूरी है। और इसी तरह एक टेबल सब क्यूरी हो सकती है, दैट could return one or more columns and multiple rows. So there could be different types of सब क्यूरीज, जिन जो स्केलर भी हो सकती हैं, आपकी रो सब क्यूरी भी हो सकती है या एक टेबल सब क्यूरी भी हो सकती है। Suppose you are asked कि जी लिस्ट स्टाफ
who work in branch at 163 मेन स्ट्रीट। अब जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ड्रीम होम डेटाबेस की समझ नहीं आती कि वो मुख्तलिफ टेबल्स किस किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उनका आपस में किस तरह का जो है वो रिलेशनशिप है, तो फिर बाज़ औक़ात आपको ये क्यूरीज भी समझ नहीं आएंगी। तो मतलब अगर आपको वो चीज़ क्लियर होती है तो फिर ये क्यूरीज समझना और इनका रिजल्ट लिखना कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए स्टेटमेंट्स लिखना मुश्किल नहीं है। तो अब इस क्यूरी को देखें तो ये देखें लिस्ट स्टाफ, तो ये हमसे स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रही है, मतलब हमें रिजल्ट स्टाफ के बारे में चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, उन स्टाफ मेंबर्स का हु वर्क इन द ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट। अब अगर स्टाफ का रिलेशन आप गौर से देखें तो स्टाफ के रिलेशन के अंदर सिर्फ ब्रांच नंबर यूज हो रहा है, लेकिन ब्रांच का जो एड्रेस है वो तो इसमें नहीं है। और ये जो बात कर रहा है कि उस ब्रांच का, जिस ब्रांच का एड्रेस क्या है, 163 मेन स्ट्रीट है, तो ये जो एड्रेस है ब्रांच का, ये तो ब्रांच के टेबल में है। तो अब कैसे ये वाला रिजल्ट जो है हम निकालें? तो इट मीन्स के वी नीड टू एक्सट्रैक्ट डाटा, मतलब डाटा तो हमने एक टेबल से एक्सट्रैक्ट करना है, स्टाफ के टेबल में से, लेकिन जो डाटा आना है वो डिपेंड कर रहा है एक और टेबल के ऊपर, और वो टेबल है ब्रांच का। तो मतलब इसमें थोड़ा सा आपको पहले ये सिचुएशन समझने की जरूरत है। तो आप देखें, आपने सिलेक्ट स्टाफ ही करना है, मतलब आपको डिटेल स्टाफ की चाहिए, लेकिन उस स्टाफ की जो उस ब्रांच पे काम करता है जिसका एड्रेस 163 मेन है स्ट्रीट है। तो इट मीन्स कि जी हम किसी तरीके से उस ब्रांच का पता चला लें कि उसका ब्रांच नंबर क्या है, तो वो ब्रांच नंबर तो स्टाफ के अंदर है, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम बिल्कुल इसी किस्म का कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें इसका स्टेटमेंट, अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, तो इट मीन्स दीज ऑल एट्रीब्यूट बिलोंग टू स्टाफ रिलेशन, मतलब सारे ये स्टाफ के हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टाफ। अब ये भी हमारा क्लियर हो गया जी कि हम स्टाफ से ही सारा डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी। लेकिन अब वेयर का क्लॉज, वेयर के क्लॉज किस लिए लगाते हैं कि हम अपनी मर्जी की रोज जा रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, वेयर ब्रांच नंबर इक्वल टू, अब ब्रांच नंबर स्टाफ के अंदर है, ठीक है, लेकिन ब्रांच नंबर कौन सा? अब इक्वल के बाद आप देखें तो अब हमने यहाँ पे सब क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी लगाई है। तो जो वेयर क्लॉज में या हैविंग क्लॉज में आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो सब क्यूरी कहलाएगी। तो अब आप देखें कि आपने क्या कहा, सिलेक्ट ब्रांच नंबर। अब एक चीज बड़ी कॉमन सेंस की है इधर कि मसलन आप देखिए वेयर के बाद आप किसके साथ मैच कर रहे हो, ब्रांच नंबर के साथ मैच कर रहे हो, तो जो आपकी सब क्यूरी होनी चाहिए, सब क्यूरी भी एग्जैक्टली वही वैल्यू होनी चाहिए, उसी डोमेन पे होना चाहिए जो उधर है। तो इट मींस हमें ब्रांच नंबर ही इधर सेलेक्ट करना है। तो लेकिन अब सेलेक्ट हम किस से कर रहे हैं, ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच के टेबल से। अच्छा, ब्रांच के टेबल से हम वो वाला ब्रांच नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे कर रहे हैं, वेयर स्ट्रीट इक्वल्स टू 163 मेन स्ट्रीट। तो अब ये देखें कि जो आपकी, जब आप सब क्यूरीज लगाते हो या नेस्टिंग करते हो क्यूरीज की, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम पढ़ते आए हैं कि जो भी चीज़ पैरेंथेसिस के अंदर होती है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। मसलन आप प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी हो या कोई भी मैथमेटिक्स के आपने अर्थमेटिक्स पढ़ी हो, उसके अंदर भी हमें बताया गया था कि अगर कोई भी चीज़ हम पैरेंथेसिस के अंदर रख लें तो उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन पहले होगी, पहले उसको प्रोसेस करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। तो इट मीन्स इधर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो हमारी जो नेस्टेड क्यूरी होती है या सब क्यूरी होती है, पहले वो एग्जीक्यूट होती है। तो सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच जब हम करते हैं तो ये हमें पहली बात है एक वैल्यू देगा, ठीक है, ब्रांच नंबर के अगेंस्ट वैल्यू देगा। और मैंने बताया कि ब्रांच नंबर क्यों हमें करना चाहिए, लॉजिकली उसकी सेंस बनती है, क्यों, क्योंकि हम वेयर के बाद ब्रांच नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम मतलब दोनों एक जैसी चीज़ें कंपेयर हो सकती हैं। ये तो नहीं है कि आप मतलब कोई दो एक चीज़ें एक जैसी हैं ही नहीं, तो उनको तो कंपैरिजन का बेसिकली कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वेयर आप क्या कह रहे हैं, स्ट्रीट 163, जिसका स्ट्रीट हो 163 मेन स्ट्रीट हो। तो आप अगर ब्रांच के टेबल में जाके देखें तो 163 मेन स्ट्रीट जो है वो ये B003 इस ब्रांच का नंबर है। तो इट मीन्स कि अब ये जो सब क्यूरी है ये क्या रिटर्न करेगी, ये B003 रिटर्न करेगा हमें। और अब वेयर के बाद ब्रांच नंबर इक्वल्स टू
मतलब इन अदर वर्ड्स ये क्या करेगा, ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। तो स्टाफ के अंदर जो लोग हैं B003 वाले, उनके स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पोजीशन, ये सारी चीजें जो है वो रिटर्न कर देगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली सब क्यूरीज आर यूज्ड। और हम देखेंगे कि सब क्यूरीज जो है वो बड़ी यूजफुल हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हमें जब मतलब इन्फॉर्मेशन तो एक ही टेबल से आनी है, लेकिन वो उसका जो डिपेंडेंसी है वो किसी और टेबल पे भी है डाटा की, तो वो फिर इस सूरत में हम सब क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे। अब जो इनर क्यूरी है, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली ये ब्रांच के टेबल में से डाटा लेके आती है और एक हमें वैल्यू रिटर्न करेगी और वो ब्रांच नंबर रिटर्न करेगी, लेकिन किसका, जिसका स्ट्रीट एड्रेस 163 मेन स्ट्रीट है और वो B003 ब्रांच है। फिर आउटर सेलेक्ट जो है, फिर उस बेस के ऊपर वो जो वेयर क्लॉज के अंदर है, जो आपकी मतलब स्टाफ में से सिर्फ वही रो सिलेक्ट होंगी जो वेयर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी कि जब वहाँ ब्रांच नंबर इक्वल है B003 के। तो मतलब कहने का मकसद है, अब इस क्यूरी को अगर सिंप्लीफाइड वर्ड्स में अब लिखें हम, तो हम देख सकते हैं कि इसको इस तरह लिखा जाएगा, सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। तो मतलब इन अदर वर्ड्स दिस इज हाउ बेसिकली द आउटर स्टेटमेंट इज फाइनली रिटन। तो मतलब वो उसका रिजल्ट पहले आता है, फिर उसकी बेस के ऊपर अब ये जो है आपकी आउटर क्यूरी जो है सेलेक्ट जो है वो इस स्टाफ में से इस बेस पे डाटा एक्सट्रैक्ट करता है। अब इसमें डेफिनेटली वही जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो B003 ब्रांच में काम करते हैं वो आपके शो हो जाएंगे। तो ये इसका रिजल्ट है। अच्छा, अब इसी तरह जो है हम जो एक क्यूरी जो है या सब क्यूरी जो है दैट कुड बी यूज्ड इन अ वेयर क्लास इन डिफरेंट फॉर्म, कि जी मसलन फर्ज करें जैसे हमने कहा था कि जो एग्रीगेट फंक्शंस है दे कांट बी यूज्ड इन बेसिकली वेयर क्लॉज, लेकिन एग्रीगेट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ सब क्यूरी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम मसलन फर्ज करें हमसे कहा जाए कि लिस्ट ऑल स्टाफ हुज सैलरीज इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी। तो मतलब हमारे स्टाफ के अंदर सब लोगों की एवरेज सैलरी हम कैसे निकाल सकते हैं, सब लोगों की सैलरीज को जमा करें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ स्टाफ से, तो वो एवरेज सैलरी निकल आएगी। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि हमें सिर्फ उन स्टाफ का डाटा दिखाओ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो पहली बात है हमें तो एवरेज सैलरी का ही नहीं पता कि कितनी है, तो वो हम निकाल लेंगे, देखेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे हर लोगों की सैलरी से, हर स्टाफ की, और जिसकी ज़्यादा होगी वो रोज़ रिजल्ट में आएंगी। और फिर अगली बात हमसे ये भी पूछी जा रही है दूसरी, एंड शो बाय हाउ मच देयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन एवरेज, कि जी कितनी उनका डिफरेंस कितना है, कि मसलन कितना ज़्यादा है एवरेज सैलरी से उनकी सैलरी, या उनका डिफरेंस निकाला जाए तो वो कितना है। तो हम देख सकते हैं कि जी वही सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन। तो पहली बात है आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपने जो एक्चुअल आपका रिजल्ट आएगा क्यूरी का उसमें क्या क्या दिखाना है। तो हमें स्टाफ की इंफॉर्मेशन चाहिए प्लस हमें वो सैलरी का डिफरेंस चाहिए जो उसकी सैलरी और एवरेज सैलरी में आता है, तो मतलब कितना डिफरेंस है। अगर एवरेज सैलरी फर्ज करें 17,000 है और एक बंदे की 19,000 सैलरी है, तो इट मीन्स कि उसकी सैलरी पहली बात है एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, तो वो सिलेक्ट होगी रो, प्लस डिफरेंस कितना बन गया 19,000 माइनस 17,000 2,000, तो वो डिफरेंस भी हमें दिखाना है। तो हमने देखा अगला जो हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया वो एक कंप्यूटेड या डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, जो कि कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट है, वो कैलकुलेशन के थ्रू हम करेंगे। और वो देखें हम कैसे कर रहे हैं, हर बंदे की सैलरी में से माइनस सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें इधर हमने एक और सब सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टाफ, और इसको माइनस कर रहे हैं किसमें से, सैलरी में से। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम नाम क्या दे रहे हैं, जो कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट है हमारा, इसको हम नाम दे रहे हैं एज सैलरी डिफरेंस फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज, और कंडीशन हमारी क्या थी कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ द स्टाफ। तो एवरेज सैलरी अगेन हम एग्रीगेट फंक्शन सिंपली इस तरह यूज नहीं कर सकते, हम नहीं लिख सकते कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ सैलरी, ठीक है, ये चीज हम नहीं कर सकते। हमने सीखा था कि वेयर क्लॉज के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम सब क्यूरी में इसको यूज कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ हमने यूज कर दिया। तो अब बेसिकली ये सिर्फ वही रो सिलेक्ट करेगा जो बेसिकली हमें, और अगेन मतलब पहले हर एक जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो पहले एग्जीक्यूट होगी चीज़ें, तो पहले एवरेज सैलरी निकलेगी दोनों सूरतों में, ठीक है। तो फिर उसके मुताबिक फिर स्टाफ में से वो वाली रोज सेलेक्ट होंगी जो आपकी
फिर फाइनल रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले होंगी। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो जो है एवरेज सैलरी जो है वो तकरीबन 17,000 बनती है। और अब अगर उनको एग्जीक्यूट मतलब फर्ज करें कि वो रिजल्ट हमारे रिटर्न हो गए सब क्यूरीज के, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो आउटर सेलेक्ट है वो इस तरह नजर आएगी आपको। सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, कॉमा सैलरी माइनस 17,000 एज सैलरी डिफरेंस फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 17,000। तो इन अदर वर्ड्स बेसिकली आपका ये इस तरह ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। तो अब सिर्फ वो वाली रोज आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। और इसका आप रिजल्ट देखें तो इसमें सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं, SL21, SG4 और SG14, SG5। तो इनका सैलरी डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। जो पहला है SL21 उसका 13,000 का डिफरेंस है। इट मीन्स कि उसकी एवरेज सैलरी से काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। दूसरे का 1000 का है और तीसरे का 1000 का है। सब क्यूरीज जब हम अप्लाई करते हैं तो देर आर सर्टन रूल्स विच नीड्स टू बी फॉलोड। ठीक है, तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि सब क्यूरीज जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। ऑर्डर बाय क्लॉज मे नॉट बी यूज्ड इन अ सब क्यूरी। ठीक है जी, ऑर्डर बाय नहीं यूज़ कर सकते सब क्यूरी के अंदर। आउटर मोस्ट सेलेक्ट में ऑर्डर बाय यूज़ हो सकता है, लेकिन सब क्यूरी के अंदर ऑर्डर बाय यूज़ नहीं हो सकता। सब क्यूरी सेलेक्ट लिस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम नेम और एक्सप्रेशन एक्सेप्ट फॉर सब क्यूरीज दैट यूज एग्जिस्ट्स। तो एग्जिस्ट हमने अभी नहीं पढ़ा, तो मतलब देयर मस्ट बी अ सिंगल कॉलम नेम और एक्सप्रेशन जो है वो मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सब क्यूरीज के अलावा जहाँ पे हम एग्जिस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्ट आपने अभी नहीं हमने इसको पढ़ा, तो इसलिए फ़िलहाल हम इस पॉइंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज मज़ीद नहीं करते। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम नेम्स रेफर टू टेबल इन द फ्रॉम क्लास ऑफ अ सब क्यूरी। जब हम सब क्यूरी लिखते हैं तो जो आपके कॉलम्स हैं वो जो फ्रॉम है वो सब क्यूरी का उसको वो रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन रेफर टू अ टेबल इन फ्रॉम क्लास ऑफ एन आउटर क्यूरी के जो मेन आपकी क्यूरी है बाहर की सेलेक्ट है उसका जो फ्रॉम है उसके जो है कॉलम्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू क्वालिफाई द कॉलम नेम। क्वालिफाई से मुराद ये है कि फिर आपको उस टेबल का नाम डॉट वो कॉलम का नाम लिखना होगा अगर आप सब क्यूरी में आप आउटर टेबल में से कोई उस टेबल के एट्रीब्यूट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो when a subquery is one of the two operands involved in a comparison, the subquery must appear on the right hand side of the कंपैरिजन। तो हमेशा सब क्यूरी मसलन जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमने लिखा था वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और उसके बाद सब क्यूरी लगाई थी सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी। तो हमेशा जो आपका कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में जो सब क्यूरी होती है वो हमेशा राइट साइड पे लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड पे हमारा नॉर्मल एट्रीब्यूट होगा। तो अब मसलन ये एग्जांपल अगर आप देखें, मतलब अगर हम इसको इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ की सब क्यूरी हमने पहले लिख दी तो लेस देन सैलरी, तो ये करेक्ट नहीं होगा, ये एक गलत सिंटैक्स है, इस पे एरर आएगा। तो हमेशा जो सब क्यूरी है इन कंपैरिजन दैट शुड अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे आपका एक नॉर्मल एट्रीब्यूट किसी भी रिलेशन का होना चाहिए। अच्छा, मसलन इसी तरह हम कोई एक और जो है सब क्यूरी की एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। मसलन आपसे कहा जाए कि लिस्ट प्रॉपर्टीज़ हैंडल्ड बाय स्टाफ एट 163 मेन स्ट्रीट। अब ये देखें कि ये पहली बात है, मतलब आपने हमेशा इस चीज़ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है कि आपका जो आपसे क्यूरी की जा रही है वो किन टेबल्स में से डाटा लेके आ रही है। तो आपसे देखें लिस्ट प्रॉपर्टीज हैंडल्ड बाय स्टाफ। अब पहली बात है कि हमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट में हमारे पास हमें वो इंफॉर्मेशन है कि हमें उन प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है दैट इज हैंडल्ड बाय द स्टाफ। किस स्टाफ से, जो कि किस ब्रांच में काम करते हैं, 163 मेन स्ट्रीट। तो अब अगेन 163 मेन स्ट्रीट जो ब्रांच का एड्रेस है वो किस टेबल में, वो तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में नहीं है, वो तो ब्रांच के टेबल में है। तो इट मीन्स कि हमें जो है
वो जो है एड्रेस तो उसमें से मिलेगा। इसी तरह स्टाफ का कैसे पता चलेगा कि वो इस ब्रांच में काम करता है, वो तो इंफॉर्मेशन किस में है, वो स्टाफ के अंदर मौजूद है कि स्टाफ कौन सा स्टाफ मेंबर किस ब्रांच के ऊपर काम करता है। तो अब बड़ा मतलब क्लियर हो गया। लिस्ट प्रॉपर्टीज हैंडल्ड, तो मतलब प्रॉपर्टीज की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हमें स्टाफ का बताना है जी कि कौन सा स्टाफ, वो स्टाफ के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट में भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टाफ किस ब्रांच में काम करता है, और वो हमें पता चलता है स्टाफ के टेबल के अंदर, क्योंकि हर स्टाफ के अगेंस्ट उसका ब्रांच नंबर भी स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन हमें स्टाफ के रिलेशन से या टेबल से भी ये नहीं पता चलता कि उसका स्ट्रीट ये है उस ब्रांच का। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अवेलेबल इन ब्रांच टेबल। तो हमें 3 टेबल्स को बेसिकली जो है वो यूज करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक हम सब क्यूरीज की मदद से इसका जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने लिखा सिलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर कॉमा स्ट्रीट कॉमा सिटी कॉमा पोस्ट कोड कॉमा टाइप कॉमा रूम्स कॉमा रेंट। ये तमाम एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के हैं। तो मतलब हम प्रॉपर्टीज की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम डिस्प्ले कर रहे हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट का हमारा रिलेशन है जिसमें से ये इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन कौन सी रोज आएंगी वो आप देखें आगे हम किस बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं वेयर स्टाफ नंबर इन को हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इन बेसिकली जो है इनके अंदर जो भी हम सेट देंगे, जो वैल्यूज देंगे, तो उनमें से वो जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी फिर अगर कोई भी रो जो है उन वैल्यूज के साथ मैच हो जाती है तो वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इन हमेशा उस सूरत में दिया जाएगा जब मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर एक ही सिंगल वैल्यू होती तो हम इनके बजाय इक्वल यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब हमें अंदेशा है कि मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज किया है। तो इन हमेशा जो है वो मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। तो अब हमने देखें इनके अंदर हमने एक सब क्यूरी लगाई और सब क्यूरी में हमने कहा सिलेक्ट स्टाफ नंबर। तो इट मींस कि वो तमाम स्टाफ नंबर्स, कौन से स्टाफ नंबर्स, फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल टू। अब ब्रांच नंबर कौन सा होना चाहिए, ब्रांच नंबर का हमें कैसे पता करना है कि ब्रांच नंबर हमने देखना है कि जिसका स्ट्रीट जो है दैट इज 163 मेन स्ट्रीट। तो ब्रांच नंबर इक्वल्स टू, फिर अगेन हमने सब क्यूरी लगाई सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच वेयर स्ट्रीट इक्वल्स टू 163 मेन स्ट्रीट। तो अब देखें कि अब हमारे पास यहाँ पे नेस्टिंग जो है वो 2 लेवल्स तक चली गई है। आपका जो पहला लेवल है वो हमने इन के बाद लगाया और फिर उसके अंदर ब्रांच नंबर के इक्वल्स टू के बाद एक और लेवल पे नेस्टिंग कर दी। तो जो सबसे इनर क्यूरी होगी, जो सबसे अंदर वाला लेवल होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इट मींस जो सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच वेयर स्ट्रीट इज इक्वल टू 163 मेन स्ट्रीट है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा। और ये आपको पता है पिछली हमारी एग्जांपल से कि ये क्या रिटर्न करेगा, B003। आप अपना ब्रांच का टेबल सामने रखें तो आप देखें कि इसका स्ट्रीट जो एड्रेस है ये किस ब्रांच का है, ये B003 का है। तो इट मींस पहली बात ये कि B003 जो है वो रिटर्न हो गया इसकी सूरत में। जब B003 रिटर्न हो गया ब्रांच नंबर में, तो अब स्टाफ में से वो वाले स्टाफ मेंबर्स सिलेक्ट होंगे जिनका स्टाफ नंबर वो वाले लोग सिलेक्ट होंगे स्टाफ नंबर वाले जिनका ब्रांच नंबर की वैल्यू क्या है, B003। तो और वो लिस्ट जो हो जाएगी वो आएगी, वो किस में आ जाएगी, वो इन के अंदर आ जाएगी। तो इन के अंदर अब जो तमाम स्टाफ मेंबर्स हैं जिनका ब्रांच B003 है वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। अब आप देखें कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से अब वो वाले लोग सिलेक्ट होंगे। अब स्टाफ नंबर जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में भी मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है कि ताकि इस चीज़ को देखा जा सके कि कौन से जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वो उन सर्टन प्रॉपर्टीज को हैंडल कर रहे हैं। तो अब चूंकि अब मल्टीपल लोग आएंगे, मतलब इस सूरत में अगर ब्रांच B003 का जो हमने पिछले एग्जांपल्स भी देखी थी उसमें हमने देखा था कि 3 स्टाफ मेंबर्स हैं जो ब्रांच B003 में। तो अब वो तीनों में से जो वो मैच करेगा स्टाफ मेंबर्स, वो वाली रोज जो है प्रॉपर्टी फॉर रेंट की सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मतलब फाइनली आप देखेंगे कि आपके सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो शो होंगी जो जिनका स्टाफ नंबर की वैल्यू जो है उन 3 में से किसी एक का स्टाफ नंबर उनका होगा। और फाइनली हमने देख लिया कि ये एक्चुअली हमारा रिजल्ट सारा कैसे आया।
इसका अगर रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज की फॉर्म में आएगा, PG16, PG36, PG21। तो ये हमारे जो है ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसके बाद हमारे पास एनी और ऑल हैं। एनी को समटाइम्स मतलब सम भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ जगह पे। अब एनी और ऑल जो है ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी सब क्यूरीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं और ये सिंगल कॉलम जो है ऑफ नंबर्स जो है ये रिटर्न करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑल से मुराद क्या है कि कंडीशन विल ओनली बी ट्रू। पहली बात कि सब क्यूरी में यूज़ करेंगे और सब क्यूरी में जब ऑल यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि जी जब वो वाली सब क्यूरी डेफिनेटली वो किसी कंडीशन में यूज हुई होगी, वेयर क्लॉज में यूज हुई होगी, तो कंडीशन विल ओनली बी ट्रू इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द सब क्यूरी। तो मतलब अगर सारी वैल्यूज जो सब क्यूरी ने प्रोड्यूस की, अगर वो कोई भी रो उन सब को सेटिस्फाई करती है तो फिर वो वाली रो सिलेक्ट होगी। लेकिन जो एनी है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एनी मीन्स कि किसी एक से भी एनी वैल्यू, ठीक है, तो अगर 3 वैल्यूज आई तो उनमें से किसी एक को भी उसने सेटिस्फाई कर दिया, मतलब उसने कंपैरिजन में, तो वो फिर सिलेक्ट हो जाएगी। तो विद एनी कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सब क्यूरी। तो ये एग्जांपल हम करेंगे तो इट वुड बी वेरी क्लियर इफ सब क्यूरी इज एम्प्टी। अब ये एक खास मतलब देखें, बाज़ औक़ात कोई सब क्यूरी का रिजल्ट एम्प्टी टेबल भी आ सकता है, तो फिर क्या होगा? तो ऑल रिटर्न्स ट्रू, ऑल की सूरत में ट्रू वो रिटर्न करेगा, और एनी अगर लगा होगा तो रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है जी। तो ये एक स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं, आपको अपने जहन में रखने होंगे। सम में बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी, तो बाज़ मतलब DBMS में सम भी यूज़ किया जाता है एनी की जगह पे, तो मतलब एनी के बजाय वहाँ पे सम भी यूज़ किया जाता है। और SQL सर्वर में भी आई थिंक शायद दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा। Suppose you are asked कि जी find staff whose salary is larger than the salary of at least one member of staff at branch B003। अब ये क्यूरी बड़ी क्लियर है। स्टाफ, पहली बात स्टाफ में से डाटा हमें चाहिए सारा, whose salary is larger than the salary of at least one member of staff at branch B003। तो इट मीन्स कोई भी एक से ज्यादा हो जाती है, तो आपको एनी और ऑल याद आ गया होगा। ठीक है, तो एनी वही होता था, उनमें से B003 में हो सकता है 10 लोग काम कर रहे हो, 20 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन किसी एक बंदे से भी उसकी सैलरी ज्यादा है, जिस स्टाफ मेंबर की भी, तो वो वाला हमने स्टाफ मेंबर सिलेक्ट करना है। तो आप देखें हम कैसे करेंगे जी। सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन और सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सम। अब एनी के बजाय हमने सम यूज किया, और आगे सिलेक्ट जो सब सिलेक्ट है या सब क्यूरी हमारी, सिलेक्ट सैलरी। अब एक बात हमेशा, मतलब ये एक अमूमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो हमेशा यही गलती होती है। आप ये देखें कि वेयर के बाद हमने सैलरी यूज किया है, तो सैलरी एक सिंगल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो जब सैलरी एट्रीब्यूट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो राइट साइड पे जो हमारी सब क्यूरी है उसके अंदर भी लॉजिकली सिलेक्ट के अंदर कौन से एट्रीब्यूट होना चाहिए? सैलरी ही होना चाहिए। तो हमेशा मतलब ये नहीं आप ये कि इधर सैलरी सिलेक्ट किया तो उधर आप 4 कॉलम्स नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि आपने इस कॉलम को उसी एक से कंपेयर करना है। और लॉजिकली सेंस भी क्या बनती है कि सैलरी को सैलरी से कंपेयर किया जा सकता है। ये नहीं कि सैलरी को नाम से कंपेयर कर रहे हैं, सैलरी को रूम नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ वो डाटा टाइप एक जैसी होना ज़रूरी नहीं है कि सैलरी भी मतलब नंबर है, रूम्स की तादाद भी नंबर है, तो मतलब इसका लॉजिकली सेंस नहीं बनता। तो मतलब ये एक अमूमी गलती है जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, तो इसको आपने हमेशा अवॉइड करना है। तो हमने कहा जी सब क्यूरी के अंदर सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। तो पहली बात है सिर्फ उन लोगों की सैलरी दिखाएंगे जिनकी ब्रांच क्या है? B003 है, और स्टाफ के रिलेशन में से हम दिखा रहे हैं। तो B003 वालों की मतलब अगर 3 लोग हैं तो 3 डिफरेंट सैलरीज हैं। मसलन हो सकता है एक की 24,000 है, एक की 9,000 है और एक की 18,000 है सपोज। ठीक है, तो अब ये कंडीशन ये कहती है कि ऐसे स्टाफ मेंबर जिनकी सैलरी किसी भी इन 3 में से एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हम
इट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम सैलरी से किसी की भी ज्यादा है तो वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा। जो मतलब 3 है तो जो सबसे कम से भी किसी की ज्यादा है तो वो वाला बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा हम देखें तो इसका अगर देखें तो जो इनर हमारी क्यूरी है या सब क्यूरी है वो हमें 3 वैल्यूज देगी, एक 12,000, 18,000 और 24,000। तो इन अदर वर्ड्स के किसी भी स्टाफ मेंबर की सैलरी 12,000 से ज्यादा है तो इट मींस उसने एक का तो सेटिस्फाई कर दिया, 12,000 से किसी की भी ज्यादा होगी तो इट मींस वो सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि सम यूज हुआ है, एनी यूज हुआ है। ठीक है। तो एनी का यही है कि जब वो कोई एक को भी रो को मतलब उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा किसी भी एक उस सेट में से तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि ऑल के केस में जब तक वो तीनों को मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो सिलेक्ट नहीं होगी वो वाली रो। तो आउटर क्यूरी सिलेक्ट्स द स्टाफ हु सैलरीज आर ग्रेटर देन एनी ऑफ द वैल्यूज इन दिस सेट। तो एनी से मुराद यही है अब जी के 12,000 से भी ज्यादा हुई तो वो सिलेक्ट हो ही जानी है। तो अब आप देखें कि 30,000 भी सिलेक्ट हो गया, 18,000 भी हो गया और 24,000 भी हो गया। अब ऑल की बिल्कुल इसी क्यूरी को अगर थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि फाइंड स्टाफ हु सैलरी इज लार्जर देन द सैलरी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ, हर मेंबर से ज्यादा है तो हर मेंबर के लिए जरूरी है कि जी हमें उन सारों को वो से बड़ा हो, तो मींस उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़ा हो। तो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि जी जो B003 के एम्प्लॉयज हैं उनकी जो मैक्सिमम सैलरी है उससे भी ज्यादा हो तो वो फिर आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट स्टाफ नंबर कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा पोजीशन सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल आ गया। और ऑल के बाद हमने सब क्यूरी के अंदर वही वाली चीज लिखी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। अगेन कीप इन माइंड कि ये जो सब क्यूरी है ये रिजल्ट क्या रिटर्न करेगी, 3 वैल्यूज 12,000, 18,000 और 30,000। तो व्हाट डज इट मीन कि उन लोगों की सैलरी वो वाले लोग सिलेक्ट होंगे जिनकी सैलरी इन तीनों से ज्यादा हो। तो तीनों से ज्यादा होने से मुराद क्या है, 12,000 से भी ज्यादा होने चाहिए, 18,000 से भी ज्यादा होने चाहिए और 30,000 से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड सादा अल्फाज में मींस के 30,000 से ज्यादा होगी तो 12 और 18 से तो डेफिनेटली होगी। तो मतलब इन अदर वर्ड्स के जी अगर उस ब्रांच B003 की जो मैक्सिमम किसी भी स्टाफ की सैलरी है अगर उससे ज्यादा होती है तो वो फिर ये आपका वो वाले लोग सिलेक्ट होंगे। तो आप अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो जो है वो आप 12,000, 18,000 और 24,000 तो मतलब 24,000 से जिसकी भी ज्यादा होगी वो वाली जो है वो रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो एक ही ऐसा बंदा है SL21 जॉन वाइट के नाम से जिसकी सैलरी 30,000 है, दैट इज बेसिकली दैट हैव मोर सैलरी फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ जो कि दैट वर्क्स इन ब्रांच B003। ठीक है जी। तो ये आपका एनी और ऑल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी टेबल क्यूरीज की। अभी तक जितनी भी क्यूरीज हमने डिस्कस की हैं वो एक सिंगल टेबल के अंदर से आ रहा था रिजल्ट कि जी एक ही टेबल में से हम डाटा ला रहे थे। लेकिन हमने देखा कि जो हमने सब क्यूरी की उसमें ये था कि जो डाटा स्टिल एक टेबल से आ रहा था लेकिन जो हमारा डिपेंडेंसी थी उसकी वो किसी और टेबल पे थी या कुछ डाटा हम उसको दूसरे टेबल से ले रहे थे, लेकिन स्टिल जो फाइनल रिजल्ट था वो एक टेबल का हम शो कर रहे थे। लेकिन बाज़ औक़ात मतलब रियल लाइफ में आपको हमेशा इस किस्म की सिचुएशन आएगी कि आपने मल्टीपल टेबल्स में से डाटा उठाना है, कुछ डाटा एक टेबल में से, कुछ दूसरे में से, कुछ तीसरे में से, और बाज़ औक़ात मतलब इट कुड बी अ वेरी कम्प्लेक्स क्यूरी दैट कुड बेसिकली कंटेन डाटा फ्रॉम नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है जी। तो कैन यूज सब क्यूरीज प्रोवाइडेड रिजल्ट कॉलम्स कम फ्रॉम सेम टेबल। अब मतलब मल्टी टेबल से इन द फॉर्म इस तरह डाटा आ सकता है सब क्यूरीज में कि सब क्यूरीज में जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक ही टेबल में से उसके कॉलम आएंगे। लेकिन ये है कि जो मतलब डिपेंडेंसी है डाटा की, कोई कंडीशंस हैं वो मल्टीपल टेबल्स के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक ही टेबल में से आएगा। लेकिन सपोज इफ वी आर इंटरेस्टेड कि जी हमने मल्टीपल टेबल्स में से डाटा शो करना है जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर, तो देन वी नीड टू यूज अ जॉइन। रिलेशनल अलजेब्रा में हम जॉइन को पढ़ के आए थे। टू परफॉर्म जॉइन इंक्लूड more than one table in the from clause. It's very simple कि आप from में जब हम एक टेबल यूज कर रहे हैं वहां पे हम 2 कर लें, लेकिन हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि join की कोई खास स्पेसिफिक
कंडीशन होगी। यूज कॉमा एज सेपरेटर एंड टिपिकली इंक्लूड वेयर क्लॉज टू स्पेसिफाई जॉइन कॉलम्स। तो मैंने जैसे बताया कि जॉइन किसी ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे होगा, कोई ऐसे कॉमन कॉलम्स होंगे दोनों टेबल्स के अंदर जिसके ऊपर जॉइन हो पाएगा। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह पॉसिबल है। ऑल्सो पॉसिबल टू यूज एन एलियस फॉर अ टेबल नेम इन फ्रॉम क्लास। तो मतलब हमने देखा कि हम पहले भी एग्जांपल्स में देख के आए हैं कि हम टेबल का एलियस यूज कर सकते हैं, एक निक नेम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ब्रांच का बी यूज किया, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के लिए पी किया, ताकि अगर जब हम कंडीशन लगाएं तो बजाय पूरा का पूरा टेबल नेम लिखने के बजाय हमें सिर्फ वो एलियस यूज कर लें। तो मतलब इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस कि जब हम एलियस यूज करते हैं तो हमने जब जॉइन कंडीशन देनी है या कोई दोबारा उस टेबल का नाम मतलब उसको यूज करना है, या जब हम सिलेक्ट लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को जो दोनों में कॉमन है तो हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये इस टेबल में से है, तो हमें वहाँ पे इस एलियस का फायदा होता है। एलियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द टेबल नेम विद अ स्पेस। Alias can be used to qualify column names when there is ambiguity. Suppose there are two basically different tables और उन दोनों में एक जैसे कुछ columns हैं, तो आप उनको मतलब अगर ambiguity आप avoid करना चाह रहे हैं तो then you need to specify कि ये column जो है आप किस table का कह रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि जी ये वाला इस table की बात हो रही है। जॉइन की हम पहली एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लिस्ट नेम ऑफ ऑल क्लाइंट हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी अलोंग विद एनी कमेंट सप्लाइड। सपोज वी आर इंटरेस्टेड कि जी हमें तमाम क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस जो है उनकी प्रॉपर्टी के अलावा जो है जो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी व्यू की है फिर कोई कमेंट सप्लाई किए हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो अब क्लाइंट्स की जो डिटेल्स हैं वो क्लाइंट के टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं, और जो व्यूइंग से मतलब जो प्रॉपर्टी व्यूइंग से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट इज अवेलेबल इन व्यूइंग टेबल। तो इट मींस वी नीड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम टू टेबल्स, तो हमारा क्लाइंट का टेबल और व्यूइंग का टेबल। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे इस क्यूरी को लिख सकते हैं। ज्वाइन सिंपल हम यूज कर सकते हैं, और ज्वाइन कीप इन माइंड कि व्हेन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स वी ऑलवेज यूज ज्वाइन। और हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक जो है वो डेरिवेशन है या उसकी डिराइव्ड फॉर्म है, और ज्वाइन को हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आपको पिछले लेक्चर ज़हन में होंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ आपको ये नहीं लगेगी। अब देखिए सिलेक्ट सी डॉट क्लाइंट नंबर। अब ये सी वही एलियस है। अगर आप फ्रॉम क्लास में देखें तो फ्रॉम क्लाइंट सी, तो क्लाइंट के लिए हमने एलियस यूज किया सी। कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब ये नहीं कि सी यूज करें, कुछ भी मतलब, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए यूज किया कि जब भी हमने ये अब टेबल पूरा क्लाइंट यूज करने के बजाय, टर्म या वर्ड यूज करने के बजाय हम सिर्फ सी लिखें तो हम मतलब हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे लिए इजी भी हो जाएगी वो क्यूरी लिखनी। कॉमा व्यूइंग के लिए वी एलियस यूज हुआ है, तो इसीलिए अब चूंकि क्लाइंट नंबर वो दोनों में मौजूद है, वो आपका क्लाइंट के टेबल में भी मौजूद है और व्यूइंग के टेबल में मौजूद है। तो इसलिए इस एम्बिग्युइटी को खत्म करने के लिए कि हम कौन से क्लाइंट नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जी सी डॉट क्लाइंट नंबर। इट मींस कि वी आर बेसिकली आस्किंग फॉर द क्लाइंट नंबर एट्रीब्यूट फ्रॉम क्लाइंट टेबल, कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो इट मींस कि जी ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है और क्लाइंट के टेबल के अंदर है। कॉमा प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन क्लाइंट, ये किसके अंदर है, व्यूइंग के अंदर है। कॉमा कमेंट, कमेंट भी जो है वो व्यूइंग के अंदर है। इसके अलावा क्लाइंट नंबर भी है और व्यू डेट भी है। तो मतलब मैं बार बार ये चीज़ आपको रिपीट कर चुका हूँ कि प्लीज़ आप जो है इनको ज़रूर जो है उधर अपने टेबल्स को सामने रखें ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स किस टेबल के अंदर हैं और उनका कौन से उनमें कॉमन है। और जो क्लाइंट नंबर है इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, और हमेशा याद रखें जो जॉइन लगता है वो हमेशा कॉमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगता है। तो अब अगर हमने ये देखना है कि किस क्लाइंट ने कौन सी प्रॉपर्टी व्यू की, तो इट मींस कि क्लाइंट के जो क्लाइंट नंबर है क्लाइंट के टेबल के अंदर वही वाला क्लाइंट नंबर अगर व्यूइंग में भी मौजूद है तो इट मींस कि ये वही वाला क्लाइंट नंबर है जिसने ये प्रॉपर्टी व्यू की है। तो हम उस बेस पे कह सकते हैं कि ये वो वाला क्लाइंट है और इसका नाम वगैरह और ये सारी डिटेल जो है वो क्लाइंट के टेबल से आ सकती है। तो हमने कहा जी फ्रॉम क्लाइंट सी, तो ज्वाइन हमेशा जब लगाएंगे तो हम मल्टीपल टेबल्स लिखेंगे, कॉमा व्यूइंग वी, और अगर और 3 टेबल्स हैं कॉमा लगा के, तीसरा टेबल कॉमा लगा के, चौथा टेबल, जितने टेबल्स में से भी आप डाटा लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन फिर ज्वाइन कंडीशंस उतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको हर मतलब
जो आपस में जिनका आपस में कोई ताल्लुक हो सकता है वो फिर आपको जॉइन कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अब जब दो टेबल्स का डाटा आपने लाना है तो एक जॉइन कंडीशन आएगी, और जॉइन कंडीशन हमेशा मोस्ट प्रॉब्ली कोई कॉमन कॉलम्स होंगे, कॉलम के नेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी डोमेन जो है वो एक ही होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने कहा जी कौन से वाले, वेयर सी डॉट क्लाइंट नंबर, जो क्लाइंट के टेबल में जो क्लाइंट नंबर है उसकी वैल्यू और जो व्यूइंग के क्लाइंट नंबर है उसकी वैल्यू अगर सेम है तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको ये दिखा देगा। आप देखेंगे कि आपको क्लाइंट नंबर 2 दफ़ा के बजाय अब 1 दफ़ा अपीयर हो रहा है, और CR56, ठीक है जी, जो आपके दोनों हैं वो हमने चूंकि सिलेक्ट एक ही किया था तो हम 2 दफ़ा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट, लेकिन हमने क्लाइंट नंबर क्लाइंट के टेबल वाला हम यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप वी का भी यूज़ कर लेते, बात एक ही थी। तो लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब आपका जो प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट है ये बेसिकली व्यूइंग के टेबल में से डाटा आपका आ रहा है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि हम जो है ये मल्टीपल टेबल्स में से डाटा लेके आ रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली अ जॉइन कंडीशन और जॉइन क्यूरी इज परफॉर्म्ड। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अब आपकी रोज वही वाली सिलेक्ट हुई हैं जो आपकी जो है दोनों, जहां पे क्लाइंट नंबर की वैल्यूज दोनों के लिए सेम है। कि मसलन जो क्लाइंट नंबर की वैल्यू फर्ज करें अगर एक क्लाइंट के टेबल में है और वही वाली प्रॉपर्टी की व्यूइंग के अंदर है तो वो वाले जो है वो आपकी रोज जो है वो सिलेक्ट होंगी। इट इज इक्विवेलेंट टू इक्वी जॉइन इन रिलेशनल अलजेब्रा। जो इक्वी जॉइन हमने रिलेशनल अलजेब्रा में स्टडी किया था ये वही उसी के इक्विवेलेंट है। द मोस्ट कॉमन मल्टी टेबल क्यूरी इन्वॉल्व 2 टेबल्स दैट हैव 1 to many रिलेशनशिप। और हमेशा मतलब आप ये देखेंगे कि हमेशा जो जॉइन की क्यूरीज होंगी वो हमेशा 1 to मतलब मोस्टली वो 1 to many वाला रिलेशनशिप होगा। 1 to many, अब रिलेशनशिप्स ये सारी चीज़ें हम आगे बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन 1 to many रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जो आपका एक टेबल है उसकी एक इंस्टेंस की एसोसिएशन जो दूसरा टेबल है उसके बहुत सारे जो है वो रोज के साथ हो सकती है। मसलन जैसे आप अगर इस हमारा जो सैम्पल डेटाबेस है ड्रीम होम का, इसको अगर हम देखें तो देखें जो एक ब्रांच है, अब मसलन ब्रांच का जो हमारा टेबल है, ब्रांच के अंदर हर ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और ऑन दी अदर हैंड हमारा स्टाफ का रिलेशनशिप है। तो जो ब्रांच और स्टाफ के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दैट इज 1 to many। तो एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो मतलब B003 ब्रांच के अंदर जो है वो 10 स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं। इसी तरह जो B004 आपकी ब्रांच है या B005 ब्रांच है उसके अंदर भी मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो मतलब आपकी जब भी आपका 1 to many रिलेशनशिप होता है तो आपका जो आपका 1 वाला जिसमें 1 वाली साइड वाला रिलेशन होता है दैट होल्ड्स द प्राइमरी की, उसके अंदर वो वाले एट्रीब्यूट जो है एज अ प्राइमरी की काम कर रहा होता है। और जो मैनी वाला जो आपका रिलेशनशिप होता है, जिस तरफ मैनी वाला इंस्टेंस होती है वहाँ पे आपका वही वाली जो प्राइमरी की है दैट एक्ट्स एज अ फॉरेन की। लेकिन अभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा जो है मोस्टली आपका जॉइन जो है दैट इज़ बेसिकली परफॉर्म्ड अपॉन 1 to many जो है रिलेशनशिप के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, जिन 2 टेबल्स के दरमियान ये वाला रिलेशनशिप हो। एंड इट इज समटाइम्स कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एज वेल। जॉइन के अल्टरनेटिव देखे जाएं तो मतलब देयर आर अल्टरनेटिव्स के जी। इसी स्टेटमेंट को हम डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने जो वो स्टेटमेंट लिखी इसको हम चेंज कर दें कि फ्रॉम क्लाइंट सी जॉइन व्यूइंग वी, तो हम बजाय ये कि वो कॉमा दे के 2 टेबल्स लिखने के बजाय हमने जॉइन की कंडीशन लगा दी, जॉइन का कीवर्ड लिख दिया और व्यूइंग वी ऑन, और उसके बाद वही जो जॉइन की कंडीशन है वो लिख दी। या हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट जॉइन व्यूइंग यूजिंग क्लाइंट, तो ये भी एक उसकी वेरिएशन है फ्रॉम क्लाइंट, और नेचुरल जॉइन भी लिख सकते हैं व्यूइंग के दरमियान। तो मतलब ये तमाम जो है ये अल्टरनेटिव्स हैं उसी एक स्टेटमेंट जो हमने पिछली एसक्यूएल की
सेलेक्ट की कमांड लिखी जिसमें ज्वाइन हमने शामिल किया था, तो उसको ये फ्रॉम से आप अगर रिप्लेस कर दें इन तीनों स्टेटमेंट्स को तो तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर एक मतलब आप उसी स्टेटमेंट में जो फ्रॉम वाला ये तीनों बारी बारी आप करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों एक ही रिजल्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि जो द फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रोड्यूसेस अ टेबल विद 2 आइडेंटिकल क्लाइंट नंबर कॉलम्स, जो आपका जॉइन होता है वो 2 आइडेंटिकल क्लाइंट नंबर कॉलम्स हैं और जो बाकी हैं वो हमेशा एक क्लाइंट नंबर का कॉलम जो है वो हमें रिटर्न करेंगे। तो मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स जो पहला अल्टरनेटिव है उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्लाइंट नंबर 2 दफ़ा आएगा, लेकिन बाकी दोनों अल्टरनेटिव्स में क्लाइंट नंबर का एक एट्रीब्यूट आएगा। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है जो कि इसके अंदर है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज यू आर आस्क्ड कि जी फॉर ईच ब्रांच लिस्ट नंबर्स एंड नेम्स ऑफ स्टाफ who manage properties and properties they manage, के मतलब you need to define कि जी कौन से स्टाफ हैं वो प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहे हैं और कौन से वाली प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अगर आप देखें तो स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट इन दोनों का जो है वो आपस में इन दोनों में से डाटा आएगा। और इनका अगर आप देखना चाहें तो जो स्टाफ का रिलेशनशिप है, एक स्टाफ जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकता है, तो इट मीन स्टाफ वाला जो है वो पेरेंट टेबल है और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है वहाँ पे वो एज अ चाइल्ड रिलेशन है या टेबल है। तो जो स्टाफ नंबर है वो स्टाफ के अंदर प्राइमरी की है, तो जब भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा या 1 to many होगा तो जो आपका प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है दैट विल बी यूज्ड इन दी चाइल्ड टेबल और वो एज अ फॉरेन की वहाँ पे काम करेगा। तो स्टाफ नंबर जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में मौजूद है ताकि वो देखा जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस स्टाफ मेंबर के जिम्मे लगाई गई है या उसको कौन हैंडल कर रहा है। तो ये मतलब आप इसको फिलहाल इतना ही समझ लें। सिलेक्ट एस डॉट ब्रांच नंबर, अब अगेन स्टाफ को एस एलियस दे दिया, प्रॉपर्टी फॉर रेंट को पी दे दिया ताकि मतलब आसानी के लिए, कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर क्योंकि स्टाफ नंबर दोनों में मौजूद है, ब्रांच नंबर जो है, कॉमा एफ नेम, कॉमा एल नेम, कॉमा प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम स्टाफ एस और प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी, और वेयर एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल्स टू पी डॉट स्टाफ नंबर, और ऑर्डर बाय हमने कर दिया एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर कॉमा प्रॉपर्टी नंबर। तो अब ये देखें कि दोनों की वो वाली रोज सेलेक्ट होंगी जहां पे स्टाफ नंबर इधर वाला और उधर वाला इक्वल होंगे, तो उनकी रोज में से वो जो दोनों के एट्रीब्यूट्स हैं वो वाली जो हमने इधर सेलेक्ट स्टेटमेंट में सेलेक्ट की हैं वो वाली रोज की वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन कौन सी रोज, जब दोनों की वो वाली रोज मैच होंगी जिनकी स्टाफ नंबर स्टाफ के टेबल में और प्रॉपर्टी फॉर रेंट में इक्वल है, वही वाली सिलेक्ट होंगी। अब ऑर्डर बाय हमने देखें कि मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर किया है, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ऑर्डर बाय में जो पहला एट्रीब्यूट होता है दैट इज द मेजर सॉर्ट की, पहली जो मेजर उसके ऊपर सॉर्टिंग होती है, लेकिन बाकी जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो माइनर सॉर्ट की होती हैं। तो मतलब अगर उसमें फिर कोई डुप्लीकेशन आ रही होती है पहले कॉलम की बेस के ऊपर तो फिर अगले कॉलम्स की बेस के ऊपर फिर देखा जाता है कि सॉर्टिंग कैसे की जाए। तो दिस इज हाउ बेसिकली अगेन एन एग्जांपल ऑफ जॉइन कि जी आप कैसे काम करते हैं जॉइन के साथ, ये उसका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि जी सिर्फ वही वाले लोग सिलेक्ट होंगे जो सर्टन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और इसमें ब्रांच भी उनकी शो हो रही है, स्टाफ नंबर भी हो रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और प्रॉपर्टी नंबर भी हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और आज जो हमने चीज़ें कवर की उनकी समरी देख लेते हैं। आज हमने ग्रुप बाय क्लॉज को बड़े तफसील के साथ देखा, उसके बाद हमने ग्रुप बाय के अलावा हैविंग क्लॉज को देखा कि किस तरह हम ग्रुप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सब क्यूरीज कैसे लगाई जाती हैं, और उसके बाद हम मल्टीपल टेबल में से डाटा जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।